Good morning, my dear students. This is your second AV assignment of physics of grade 9th. In the first AV, we start the chapter number 1 and covered first 5 questions of written assignment number 1. In this AV, we will continue the chapter. Let's start. Come on the page number 2. We start from System International D units और SI system means International System of Units हमारा क्या है? In 1960, the General Conference of Weights and Measures recommended that in addition to the units of length, mass and time, the units of temperature, luminous intensity, current and the amount of substance also be taken as fundamental units and the units of angle and solid angle as complementary fundamental units. Thus, in all, now there are 7 fundamental units and 2 complementary fundamental units. Means in SI system in 1960 में क्या हुआ, एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर हुई जिसने रिकमेंड किया इन एडिशन टू, पहले हमारे फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था, लेंथ मास एंड टाइम, वो बोल रहे इनके साथ साथ और कौन सी हैं, टेम्परेचर, luminous intensity, current and amount of substance also taken as fundamental units. और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होंगी, एंगल एंड सॉलिड एंगल. वो बोल रहे हैं अकेली लेंथ मास एंड टाइम ही फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बट ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट बोलता है कि टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है. और जो एंगल और सॉलिड एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, फिर 10 इन ऑल, तो हमारी टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होगी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. Now, for SI system, the following table gives the fundamental quantities, their units and their standard symbols. See the table beta. Fundamental quantities, units and symbol in SI system. First is quantity. Quantity कौन सी है हमारी, fundamental units कौन सी है, length, mass, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance. Right? So what is the unit of length? Unit of length is meter and symbol is m. Unit of mass is kilogram and its symbol is kg. Unit of time is second and it is expressed by the symbol s. Unit of temperature is Kelvin and is denoted by K, capital K. Luminous intensity unit is candela and it is denoted by CD. Unit of electric current is ampere and it is denoted by capital A. Unit of amount of substance is mole and it is denoted by MOL, small mol. And there are 2 complementary fundamental units also. They are angle and solid angle. Unit of angle is radian and it is expressed by small rd. And unit of solid angle is steradian, means it is represented by s हाइफन आर टी. मीन्स हम यूनिट्स ऑफ स्टेडियन को हम उसका सिंबल के एस ब्रैकेट एस टी आर डी. राइट. नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रीफिक्स विद द यूनिट. अब हम कौन से प्रीफिक्स यूज करते हैं. प्रीफिक्स मतलब यूनिट से पहले कौन सा प्रीफिक्स लगता है. फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज मेजरमेंट्स वी यूज deca, hecto, kilo, etc. as prefixes with the units. The symbol and meaning of each prefix are given below. हम कौन से prefix यूज़ करते हैं, deca, hecto, kilo, etc. ये हम यूनिट के साथ यूज़ करते हैं और उसके कुछ सिंबल और मीनिंग हमें टेबल में दी हैं. लेट्स सी कौन से. deca, symbol of deca is small da and its meaning is 10 raised to power 1. Hecto is symbol small h and its meaning is 10 raised to power 2. Similarly, kilo 10 raised to power 3, mega 10 raised to power 6, giga 10 raised to power 9, tera 10 raised to power 12, peta 10 raised to power 15, exa 10 raised to power 18, zeta 10 raised to power 21 and iota 10 raised to power 24. ठीक है, these are the symbols, these are the prefix used with the units along with their symbol and meaning. Next,
The various small measurements are expressed by using the prefixes deci's, centi, milli, micro, etc. मीन्स जो स्मॉल मेजरमेंट्स है उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कौन से प्रीफिक्स के साथ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो एटसेट्रा. With the units, the symbol and meaning of each such prefixes are given below. उनके symbol और meaning हमें नीचे दिए हैं. First is deci. It is also denoted by small d, and its meaning is 10 raised to power -1. Means जो small units होती है उनका meaning किस में चल जाता है, -1. Means 10 raised to power -1. Next is centi, 10 raised to power -2. Milli, 10 raised to power -3. Micro, 10 raised to power -6. Nano, 10 raised to power -9. Pico, 10 raised to power -12. Femto, 10 raised to power -15. Atto, 10 raised to power -18. Septo, 10 raised to power -21. Cioto, 10 raised to power -24. मीन्स जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं उसके जो मीनिंग होते हैं, जो डेसी सेंटी उसे हम लिखते हैं अप टू मीन्स 10 रेस्ट पावर माइनस में -1 में, और जो हायर यूनिट्स के होते हैं उसे हम लिखते हैं 10 रेस्ट पावर 1 में. मतलब वो रेसिप्रोकल में नहीं आते, वो सीधा मल्टीप्लाई होते हैं. और जो स्मॉल यूनिट्स के होते हैं वो क्या आते हैं, रेसिप्रोकल्स में आते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया है 2.5 गीगा हर्ट्स. मीन्स व्हाट इज द meaning of giga meaning is 10 raised to power -9. ठीक है. See on the table, giga is g and it is denoted by 10 raised to power -9. So we write 10 raised to power -9 instead of giga, g. ठीक है. 2.5 gigahertz will mean 2.5 into 10 raised to power -9 hertz. Similarly, 5.0 pf will mean 5.0 into 10 raised to power -12 f. What is the meaning of pico? Pico is 10 raised to power -12 f. 5.0 mega ohm will mean ohm. What is the value of mega is 10 raised to power 6, and 2.0 millisecond mean 10 raised to power -3. 10 raised to power -3 millisecond mean 10 raised to power -3 seconds, and so on. ठीक है. If any number is given in this way, like it is not given in the numbers, and instead of numbers it is given in g, h, z, means they are given in the way of prefix, then we use the numerical value instead of prefixes. Right. नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ लेंथ. अब लेंथ के यूनिट्स क्या होती हैं. ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ. द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड. अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 as the distance between two marks drawn on a platinum iridium, an alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris. ठीक है. जो मीटर था वो ओरिजिनली किस में डिफाइंड हुआ, 1889 में, जब किसी 2 मार्क्स थे उसमें क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लैटिनम एरिडियम. मतलब एक अलॉय है जिसमें 90% प्लैटिनम एंड 10% क्या है, एरिडियम रॉड कैप्ट एट कितने टेम्परेचर पर रखी, 0 डिग्री सेल्सियस में. कहाँ पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सर्व्स नियर पेरिस. नेक्स्ट, लेटर इन 1960. अब 1960 में क्या हुआ, ये तो डेफिनेशन आई मीटर की 1889 में. ठीक है. जो 2 मार्क्स हैं, प्लेटिनम इरिडियम रोड को हम क्या 0 डिग्री पर कैप्ट कर देते हैं, और उसके क्या कहते हैं, मार्क्स, मतलब जो उसके 2 एंड्स है उसे हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉन कर लेते हैं. ठीक है. दैट इज मीटर. अब 1960 में क्या हुआ, द मीटर वॉज रीडिफाइंड. ठीक है. मीटर को कर दिया गया रीडिफाइंड. कैसे, 16,50,763.73 times the wavelength of specified orange-red spectral line in the emission of spectrum of krypton-86. It is also defined as 1 meter is 15,53,164.1 times the wavelength of the red line in the emission spectrum of कैडमियम. ठीक है. एक तो क्रिप्टम के साथ इसको किया गया, रिप्रेजेंट किया गया मीटर को. सेकंड वन इज कैडमियम के साथ. जब हम इसको क्रिप्टम के साथ, ऑरेंज रेड लाइन ऑफ क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, जब उसकी एमिशन होती है कितने टाइम, 16,50,000
63.73 times the wavelength of a specified orange-red spectral line in the emission of spectrum of krypton, and it is also defined as 50,53,164.1 times the wavelength of red line in the emission spectrum of cadmium, right? Thus, in 1983 में अब क्या हुआ था, मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. फिर अगेन मीटर को पहले तो उसे क्या किया गया, 1889 में रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, प्लैटिनम एरिडियम की रॉड से. एंड नेक्स्ट 1916 में इसे स्पेक्ट्रम के एमिशन के साथ, कौन कौन सी, ऑरेंज एंड रेड एमिशन के साथ, किस किस के, क्रिप्टम और कैडमियम के साथ. तो 1983 में अगेन मीटर को रीडिफाइन किया गया, कैसे, देखो, विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. इन 1983 द मीटर वाज रीडिफाइंड in terms of speed of light, according to which 1 meter is the distance traveled by light in 1/299,792,458 of a second in air or vacuum, ठीक है. उसका मतलब कुछ नंबर है, उसका क्या है, रेसिप्रोकल है इन एयर और इन वैक्यूम, ठीक है. क्या वो मीटर वॉज रिडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर डिस्टेंस, कितना स्पीड ऑफ लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट. 1 मीटर कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन दिस टाइम, ठीक है. यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू एज इट इज. नेक्स्ट, सब यूनिट्स ऑफ मीटर. अब मीटर्स की सब यूनिट्स क्या होती हैं. फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ्स मीटर इज कंसिडर्ड टू बिग अ यूनिट. द मोस्ट कॉमनली यूज सब यूनिट्स ऑफ मीटर आर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन एंड नैनोमीटर. मीन्स सब यूनिट्स ऑफ मीटर क्या एक बिगर यूनिट है. ऐसे मोस्ट कॉमनली हम सब जो सब यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सेंटी, मिली मीन्स वी यूज प्रीफिक्सेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन एंड नैनोमीटर. तो फर्स्ट इज सेंटीमीटर. व्हाट इज सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज 1/100th पार्ट ऑफ अ मीटर. मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 meter, means 10⁻⁻2 meter. 1 centimeter is equal to 10⁻2 meter. Next, millimeter. 1 millimeter is the 1000 part of a meter. 1 millimeter is a 1000 part of a meter, means it is expressed as 1 millimeter is equal to 1/1000 meter is equal to 10⁻³ meter or 1/10 centimeter. Next, micrometer or micron. It is 1 millionth, means 10⁻⁶ part of a meter. It is expressed by the symbol mu. It is also called micrometer. 1 micron is equal to 10⁻⁶ meter and 10⁻⁻4 centimeter and 10⁻�3 millimeter. Next, what is nanometer. It is the 1 billionth part of a meter, means 10⁻⁹. 1 nanometer is equal to 10⁻⁹ meter. Next, multiple units of meter. अब मीटर की मल्टीपल्स यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ or distances, meter is considered as too big a unit. The most commonly used multiple units of meter is किलोमीटर. मीन्स मेजरमेंट ऑफ लार्ज, अगर हमने लार्ज लेंथ की मेजरमेंट लेनी है तो मीटर क्या हो जाती है, स्मॉल यूनिट से हो जाती है, ठीक है. तो दैट्स वाई हमने कुछ मल्टीपल यूनिट्स यूज करते हैं, दैट इज किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीपल ऑफ अ मीटर, means 1 kilometer is equal to 1000 meter or 10⁻³ meter. Next is non-metric unit of length. अब मतलब non-metric units कौन कौन सी लेंथ, that is bigger units. bigger units कौन कौन सी हैं. For the measurement of distance between two heavenly bodies, kilometer is considered too small unit. The commonly used unit for this purpose are astronomical unit, light year and parsec. Means for the distance, for measuring the distance between two heavenly bodies, kilometer is so small, ठीक है. किलोमीटर क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है अगर हमने टू हेवनली बॉडीज में डिस्टेंस देखना हो. दैट्स व्हाई यू यूज द बिगर यूनिट्स नेम एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर एंड पार्सेक. सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू
द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, मीन्स जो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में एक साल में, इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी स्पीड ऑफ लाइट है इंटू टाइम ऑफ 1 ईयर। Speed of, what is the speed of light? Speed of light is 3 into 10⁻⁸ meter per second, and 1 year time means 365 days, 24 hours, 60 seconds and 60 minutes. This is equal to 9.46 into 10⁻15 meter is equal to 9.46 into 10⁻12 kilometer. Next, the distance of stars from Earth is generally expressed in light year. However, its smaller units, light minute and light second, are also used. Light year की smaller unit कौन सी है, light minute and light second. It is also used. Next, 1 light minute is equal to 3 into 10⁸ meter per second into 60 second, and 1 light second is equal to 3 into 10⁸ meter per second into 1 second, right? Next, parsec. Parsec क्या है? 1 parsec is the distance from where the semi-major axis of the earth, from which the semi-major axis of orbit of earth subtends an angle of 1 second, ठीक है। 1 parsec है डिस्टेंस फ्रॉम द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, जो अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस है उससे डिस्टेंस कहाँ तक सबटेंड, मतलब वो कितना एंगल सबटेंड करता है सेमी मेजर एक्सिस से इन 1 सेकेंड। सो 1 parsec is to 1 second is equal to 1 astronomical unit. 1 parsec is equal to arc length over angle in radians. Now putting the value, and we have 3.626 light year. Next, smaller units. To express the wavelength of light, size and separation between two molecules or atoms, radius of orbit of electron etc., small size unit called the Armstrong is used, ठीक है। जब हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज को सेपरेशन करना टू मॉलिक्यूल्स में, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्मॉल साइज यूनिट, ठीक है, हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग इज यूज्ड। व्हाइल द साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर हमें न्यूक्लियस का साइज देखना हो, बाय अ स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड फर्मी, राइट। नाउ आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग इट इज द 10⁻10th पार्ट ऑफ अ मीटर, ठीक है। क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या होता है 10⁻10th पार्ट ऑफ अ मीटर। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ए डॉट, ठीक है, ए के ऊपर हम क्या डाल देते हैं 0, उसे हम आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। दैट इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड 10⁻⁻1 nanometer. Therefore 1 micron is equal to 1000 Armstrong and 1 nanometer is equal to 10 Armstrong, right? 1 nanometer is equal to 10 Armstrong. Nowadays Armstrong is outdated, ठीक है, अब Armstrong क्या हो गया है, outdated हो गया है, and nanometer is preferred over Armstrong. हम क्या करते हैं, nanometer क्या करते हैं, prefer over Armstrong. The wavelength of light, intermolecular, interatomic, intermolecular separation etc. are now commonly expressed, ठीक है। अब हम क्या यूज करते हैं, इंटरएटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन एक्सेट्रा नाउ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। अब हम उसे किस पे कंसिडर करते हैं, नैनोमीटर में। नेक्स्ट इज फर्मी। बेटा व्हाट इज फर्मी, इट इज 10⁻⁻15 पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। The commonly used smaller and bigger units of length are summarized in the following table, ठीक है। स्मॉलर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड फर्मी। बिगर यूनिट्स हैं किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, light year and parsec. These are the bigger units. Now let us come to the written assignment number 1. We will continue from question number 7. Come to the assignment number 1, page number 2,
And question number 7. What is the question number 7? What are the fundamental units in SI system? Name them along with their symbol. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं उसका हमने नेम देना है. हमने कौन कौन सी पढ़ी है अभी अभी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, इसके आपने सिंबल, इसकी यूनिट देनी है. लेंथ की क्या है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें होती है? मोल. और उसके अपने क्या देने सिंबल. हमने अभी भी पढ़ा ना, सेम एज इट इज आपको क्या बनाना है? टेबल बनाना है. राइट. नेक्स्ट question number 8. explain the meaning of derived unit with the help of one example. ठीक है, derived units क्या होती हैं? हमने पढ़ा था ना, हमारे पास 2 टाइप्स की यूनिट होती हैं. फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है. और सेकेंड इज derived units दो जो क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या होती हैं? डिपेंड होती हैं. सो लेट्स सी the units of quantity other than those measured in fundamental unit can be obtained in the terms of fundamental unit, and thus the units so obtained are called derived units. जिस units को हम fundamental unit से derive करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, हमने स्पीड की यूनिट पता करनी है, स्पीड की होगी डिराइव्ड यूनिट. बट जो डिस्टेंस और टाइम है इसकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है. मतलब उनकी तो यूनिट्स की डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर. एंड टाइम की होती है? सेकंड होती है. तब हम जो इनकी फंडामेंटल मतलब स्पीड की यूनिट कैसे आएगी? बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट. सो दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. Let's see, speed equal to distance upon time. Hence, the unit of speed is equal to fundamental unit of distance over fundamental unit of time. So, fundamental unit of distance is meter and time is second. So, unit of speed is meter per second. As the unit of speed is derived from the fundamental unit of distance and time, it is कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स. ठीक है, क्योंकि हमने जो स्पीड की यूनिट्स है वो हमने किससे ड्राइव की? फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम. सो दैट इट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. नेक्स्ट बेटा स्टैंडर्ड मीटर क्या है? डिफाइन स्टैंडर्ड मीटर. हमने डेफिनेशन पढ़ी ना 1889 में. क्या हुआ? जो प्लैटिनम इरिडियम रॉड के जो एंड थे उनके हमने 2 मार्क कर लिए. ठीक है, वन मार्क ऑन this left side and 1 mark on right side. means platinum iridium एक alloy है with 90% made of platinum and 10% iridium. उस रॉड को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखकर उसके डिस्टेंस के में क्या कर ले? डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम रॉड कैप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. कहाँ पर रखी थी? इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेल्फ्स नियर पेरिस. Next, name 2 units of length which are bigger than a meter. How are they related to meter? ठीक है, हमने 2 यूनिट्स बतानी है और मीटर से बड़ी हैं. हमने अभी भी बड़ी कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड किलोमीटर आर यूनिट्स ऑफ लेंथ which are bigger than meter. 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 raised to the 11 meter. Next, write the names of 2 units of length which are smaller. Smaller कौन सी है? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर दे 2 smaller units. ये हमने अभी सब पढ़ा है. 1 centimeter is equal to 10 raised to 2 meter and 1 millimeter is equal to 10 raised to 3 meter. नेक्स्ट बेटा, हाउ नैनोमीटर रिलेटेड टू एमस्ट्रॉन्ग. हमने पढ़ा था ना. अब क्या होते हैं? एमस्ट्रॉन्ग क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया है. उसी की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? नैनोमीटर. सो हाउ इट इज रिलेटेड टू एमस्ट्रॉन्ग? हाउ नैनोमीटर इज रिलेटेड टू एमस्ट्रॉन्ग? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग. राइट. Next question, name the 3 convenient units used to measure length ranging from very short to very long value. How are they related to SI system? ठीक है, SI system में ये कैसे relate करती हैं?
हमने 3 कन्वीनियंट यूनिट्स बतानी है. The 3 convenient units of length and their relation with the SI unit of length is 1 Armstrong is equal to 10 raised to power minus 10 meter, 1 kilometer is equal to 10 raised to power 3 meter, and 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to power 15 meter. Next, नेम द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड डिफाइन इट. ठीक है, हमने एसआई यूनिट देनी बतानी है मास की और उसे क्या करना है, डिफाइन करना है. एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है. किलोग्राम को हमने कैसे डिफाइन करना है, इन 1889 में क्या हुआ, अगेन 1 किलोग्राम वाज डिफाइंड एज द मास ऑफ सिलेंड्रिकल पीस. वो क्या था, एक रॉड थी ना, इसमें किलोग्राम क्या हुआ, सिलेंड्रिकल पीस था, किसका, प्लेटिनम एरेडियम एलॉय का, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्ड एंड सर्व्स नियर पेरिस. राइट, ठीक है. 1889 में जब हमने करनी है मीटर की, सॉरी, जब हमने मीटर की थी तब प्लेटिनम रेडियम की थी, रॉड थी, जिसे हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर कैप्ट किया था. जब हमने किलोग्राम की स्टैंडर्ड यूनिट्स देखनी है तो क्या था, एक सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम रेडियम एलॉय का था, जिसे हमने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा था. राइट बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर half of the assignment number 1. I hope you all understood the chapter and assignment. Thanks and have a nice day.